only one pulse of the input for the input for the one cycle of the input voltage. Okay, so we can also say this the single phase one pulse converter, single phase one pulse converter, or single phase full wave converter. Next is the full wave rectifier. Full wave controlled rectifier. Okay, in the full wave we can configure it in two ways. First is the midpoint, and second is the bridge type full wave controlled converter. Midpoint converter, and second is the bridge converter. Bridge converter. Okay. Single phase half wave controlled rectifier produce only one pulse of load current during one cycle of source voltage. आवाज one pulse converter. Okay. Single full wave rectifier. Single phase. सर सर Next topic is the single phase full wave. हेलो सर हाँ सर बोलो। इसमें सोर्स वोल्टेज के बाद क्या वर्ड लिखा है? Source voltage comma है, comma these can therefore ओके be सर, termed as ओके सर. midpoint converter. Midpoint converter. Okay. It is also known as two pulse converter, single phase two pulse converter. Okay. See the diagram for the single phase configuration. This is the input side of a transformer. This is output side, secondary side of a transformer. The two pulse midpoint converter. We will use two thyristor, two thyristor. So this is a thyristor number one, and this is a thyristor number two. Okay, and the load will be connected here. In the load
we are using a series combination of a resistance and a inductance. Okay. Now I am completing the circuit. Okay. This is the terminal A, B. Okay. This is a thyristor T1, thyristor T2, load V0, quality of V0. The direction of current which are flowing through the load will be in this direction, I naught. So V0 will be positive here and negative here. VT1 will be positive here, negative here. VT2 voltage across thyristor will be positive here, negative here. So given direction of I naught will be treated as positive. The given polarity of V naught, VT1 and VT2 will be treated as positive. Okay. And given polarity of this winding, polarity positive. If this is positive, then terminal B will be negative. Okay. And the midpoint, the midpoint is denoted by N. Okay. So N, according to this positive, if the A terminal is positive, the N will be negative here. If B is negative, then this terminal will be positive. Okay, so given quality of voltage will be treated as positive, and given direction of current, load current will be treated as positive. Okay, and the load is connected to the midpoint of a transformer. That's why it is called a midpoint converter. That's why it is called a midpoint converter, because a load is connected at the midpoint of the transformer secondary winding. Now see the working of this circuit diagram. Circuit diagram. Now I am drawing a equivalent circuit for this circuit diagram. Okay. This is a load containing R and L, resistor T2, resistor T1, and this is the voltage source VAN. We can see here T1 is connected to VAN. Okay, and the positive of this thyristor is connected to A. So this terminal will be at positive. So this will be negative, and T2, in this T2 the voltage is VBN. T2 is connected to source VBN, positive and negative. Okay, positive negative, this is VT1, positive negative, this is VT2, and here this is gate terminal. This is gate terminal. Now see the working. Okay. Here VAN is equal to Vm sin omega t. Okay, let VAN is equal to Vn sin omega t, and VBN also Vm sin omega t. Let VAN is equal to Vn sin omega t. So what is the value of VBN? VBN is a negative
of the sinusoidal cycle. It's a negative sinusoidal cycle. So VBN will be minus of Vm sine omega t. Okay, because B is at negative, that's why VBN is equal to minus Vm sine omega t. Okay. For the first cycle, when A is made positive, when A is made positive with respect to B, in that condition, the thermistor T1 is forward bias and T2 is reverse bias. When A is made positive with respect to B, okay. So in that condition, T1 thermistor T1 जो है वो आपका क्या है, forward biased, and in this condition thermistor T2 will be reverse biased. Next time I will write forward bias by FB and reverse bias by RB. Okay, FB for forward bias, RB for reverse bias. So in this condition, now we can fire the thermistor T1 at any angle. At any angle we can fire thermistor T1 for conduction purpose. Okay, so at omega t is equal to alpha, we fired, or we can say we triggered the thermistor T1. We triggered the thermistor T1, so it will conduct. Okay. So thermistor T1 now is in conduction mode. Then we can get a output voltage V0 across the load R and L. So the direction of current we can see here. This is the direction of current. Is off in this condition, so it will be treated as a open circuit. So this current will be flowing through this path, and in this path R and so input यहाँ पे आपका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे साइन कैसा आएगा, नेगेटिव. दिस इज आउटपुट वोल्टेज V0. Okay, and this is the direction of the load current I0 in these conditions. I0 is I0. Okay, so the output voltage here, the load is directly connected to the source. The positive of the load is connected to the positive of VAN. The negative of load terminal is connected to negative terminal of a supply VAN. So here V0 is equal to VAN. And I0 is increasing gradually because of the presence of inductance in the load. Okay, so inductor, what is the inductor? Inductor is always oppose the rate of change of current. Current. That's why the current in the inductor will be increased gradually. So I0 will increase gradually. Okay, I0 will increase gradually. The magnitude of VT1. What is the magnitude of VT1? It is short circuit. That's why the VT1 will be 0. And what is the VT2 at this condition? What is the VT2? VT2 is reverse bias. It is turned off due to the reverse bias. Because that's why the value of VT2 will be equal to VBN. And VBN we know VBN is equal to
minus of Vn sine omega t. Okay. Now the waveform for this this is for the size for the output for the output current voltage current. Hurry up. This is one waveform. 3 pi and VBN, supply of VBN. So now at omega t is equal to alpha. So this point is alpha. This point is alpha. So at this alpha, which SCR is forward bias, which SCR is in conduction mode? Thyristor T1. Thyristor T1 is in conduction point. So here T1 is triggered, T1 is on. Okay, T1 is on. So at this terminal, we get the output voltage from the alpha to pi, from the alpha to pi. So output voltage will follow the waveform of an input cycle. Input cycle. Okay, and the current I node will increase gradually. Will increase gradually. So I node is increasing gradually from alpha to pi. Okay, and the VT1 value of VT1 is 0 because SCR is short circuit. SCR T1 is short circuit. As T1 is short circuit. VT2 is equal to minus of VBN. VBN is equal to VBN. So what is the waveform of VBN? It's a negative. It's negative waveform. So from the alpha, the voltage across VT2 is equal to VN. This is the VBN. Okay. So this is for the time omega t from alpha to pi. From alpha to pi. From alpha to pi. Okay. Now see after the pi, what will be happen? What will be happen? Wait for 1 second. So here VT2 is op. See the voltage across VT2 again. Voltage across VT2. So here VT2 is open circuit. If we apply
KVL in the upper loop, if you apply the KVL in the upper loop, what will be the value of VT2? देखिए आप इधर, what is the VT2? VAN plus VBN, VAN plus VBN, इस तरह से होगा। वैल्यू ऑफ VT1 देखिए क्या होगा, यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ मैं, है ना, KVL इन अपर लूप, ओके, KVL इन अपर लूप, यहाँ पे देखिए कहीं से आप स्टार्ट कर लीजिए। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको ना, तो ये होगा VAN प्लस VT1 माइनस VT2 प्लस VBN इज इक्वल टू 0, ओके। और इसके बाद में देखिए VAN, VT1 की वैल्यू 0 है, VT1 की वैल्यू 0 माइनस V2 प्लस VBN, ये 0 के इक्वल होगा, ओके। अब VBN को मैं सेपरेट कर रहा हूँ, सो VBN, सॉरी VBN, VT2 को सेपरेट करना है हमें, VT2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VT2? VBN AN, ओके, and VT2 is equal to, what is the value of VBN? VBN is equal to minus of VAN. So minus of VAN and minus of VAN. So VT2 will be equal to minus of 2VAN. And what is the value of VAN? VM sin omega t. Sorry, 2 आएगा साथ में यहाँ पे, VT2 will be equal to minus 2Vm sin omega t. So here minus 2Vm sin omega t. Okay. This is the voltage across T2 and voltage across T1 is 0. और ये कंडीशन कौन सी है? When T1 is on. ओके, उस कंडीशन के लिए हमने VT2 को कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे वेवफॉर्म में भी थोड़ा सा चेंज आएगा, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है वेवफॉर्म का वो होगा आपका माइनस ऑफ 2Vm, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? माइनस ऑफ 2Vm। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ये आपका मैग्नीट्यूड है। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे वो आपकी होगी माइनस ऑफ 2Vm, माइनस ऑफ 2Vm। ओके, नाउ आपको क्या करना है? अब पाई प्लस अल्फा पे नेक्स्ट थाइस्टर मींस T2 को फायर करना है। कहाँ पे फायर करना है? एट दिस पॉइंट। ये पॉइंट कैसा आपका? पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा पे यहाँ पे आपको क्या करना है? T2 को फायर करना है, मींस जो है क्या होगा आपका? ऑन होगा, T2 यहाँ पे ऑन होगा। And due to this reverse voltage the T1 will be turned off due to this reverse voltage। अब यहाँ पे देखिए VBN पॉजिटिव है, फ्रॉम पाई टू 2 पाई VBN आपका क्या है? पॉजिटिव। VAN आपका क्या है? नेगेटिव है। सो VN नेगेटिव है, सो आपका थायसेट T1 क्या हो जाएगा? टर्न ऑफ हो जाएगा। और T2 जो है वो फॉरवर्ड बायस है, T2 फॉरवर्ड बायस है। और आप पाई प्लस अल्फा पे T2 को ट्रिगर कर रहे हो, तो यहाँ से जो T2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? टर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है। at omega t is equal to pi,
एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई। सो पाई पे आपका वी ए एन एंड वी बी एन, पाई पे दोनों की वैल्यू जीरो है। ठीक है, दोनों की वैल्यू जीरो है। वी नॉट आपका ऑलरेडी जीरो है, बट आई नोट तो आपका जीरो नहीं है। आई नोट आपका जीरो नहीं है। एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई वी ए एन जीरो है आपका, वी बी एन भी जीरो है, आउटपुट वोल्टेज जीरो है, बट जो करंट है आपका आई नोट वो जीरो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस एल्फा। ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस एल्फा, यहां पे हमें क्या करना है, टी टू को फायर करना है। एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस एल्फा, टी टू will be triggered. T2 will be triggered. So it will conduct. It will conduct. Okay. So here T2 can be called as incoming thyristor and T1 can be called outgoing thyristor. Can be called outgoing thyristor. Here T2 is called incoming thyristor and T1 the outgoing thyristor. As the incoming SCR is triggered, incoming SCR is triggered, AC supply voltage reverse applies reverse bias across the outgoing thyristor and turn it off and turn it off. Okay, the load current is also transferred from outgoing SCR to incoming SCR to incoming SCR. Okay, so this process of SCR turn off by natural reversal of AC supply voltage is called natural to go. Okay, magnitude 2 Vm sin alpha.
ओके। और यहाँ पे इस कंडीशन में करंट ट्रांसफर कहाँ से हो रही है, T1 से T2 पे, क्योंकि T1 आपका ऑफ है, T2 आपका टर्न ऑन है। दैट्स वाई करंट ट्रांसफर होगी फ्रॉम द आउटगोइंग थर्स्टर टू इनकमिंग। यहाँ पे आउटगोइंग T1 है और इनकमिंग कौन सा है, T2 है। करंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम T1 to T2. T1 is therefore turned off. ओके। सो यहाँ पे जो वैल्यूज है, वोल्टेज, आउटपुट करंट, वो देखिए सर्किट डायग्राम से। पहले आपका करंट का डायरेक्शन क्या था, T1 के थ्रू। अभी जब T2 आपका ऑन है तो करंट जो है वो T2 थाइस्टर के थ्रू क्या होगी, फ्लो होगी। ठीक है, यानी यही डायरेक्शन रहेगा आपका करंट का। करंट का डायरेक्शन देखिए, यहाँ से करंट आपका जो है फ्लो करना स्टार्ट करेगा और यहाँ से कहाँ पे जाएगा, लोड में। सो देखिए पहले वाली कंडीशन में जो करंट की डायरेक्शन है जब T1 ऑन है, अब आपका जब T2 ऑन है, यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है दोनों सेम है। दोनों क्या है, सेम है। ठीक है। आउटपुट वोल्टेज की पॉजिटिव भी क्या होगी, सेम होगी। सो यहाँ पे आपका वोल्टेज एंड करंट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पहले केस में कैसा था, पॉजिटिव था जब T1 ऑन है। T2 केस में भी दोनों क्या रहेंगे, आपके पॉजिटिव रहेंगे। ओके। और आपका T2 ऑन है, दैट्स वाई VT2 आपका जीरो रहेगा और VT1 क्या रहेगा आपका, -2 Vm sin ओमेगा t। तो यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, आपका जो V0 है, V0 V0 किसके इक्वल रहेगा, बताइए। वेव फॉर्म देख के यहाँ से बता सकते हो आप, VBN के इक्वल रहेगा V0 जो है आपका, V0 इज इक्वल टू VBN। ठीक है, V0 इज इक्वल टू VBN। और जो I0 है, यहाँ पे अगेन आपका इंक्रीज होगा ग्रेजुअली। ओके। VT1 ये आपका जीरो है, सॉरी, VT1 ये आपका है -2 Vm साइन ओमेगा टी, क्योंकि रिवर्स बायस्ड है ना, तो रिवर्स वोल्टेज रहेगा इसके पास। VT2 आपका क्या रहेगा, जीरो। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ये कौन सी ड्यूरेशन के लिए है, ये आपका ड्यूरेशन जो है वो हम मेंशन कर रहा हूं मैं, ये आपका है ω t पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई, ये टाइम ड्यूरेशन है, पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई। अच्छा, यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन मैं आपको बता रहा हूँ, व्हेन ω t इज फ्रॉम पाई टू पाई प्लस अल्फा, इस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पे बताइए आप। ठीक है, ये तो पाई प्लस अल्फा के बाद की कंडीशन है, पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई। पाई से पाई प्लस अल्फा, इस कंडीशन में आपका जो वोल्टेज है, जो करंट है, वो क्या होगा। देखिए ω t = पाई पे आपका VAN जीरो है, VBN जीरो है, V0 जीरो है, बट करंट जो है यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो है। करंट यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे T2 को अभी फायर नहीं किया है, T2 को यहाँ पे फायर अभी नहीं किया है। ठीक है, T2 को फायर हम पाई प्लस अल्फा पे करेंगे। हम पाई प्लस अल्फा से पहले का जो टाइम पीरियड है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। T2 is not fired. Okay. T1 is reverse bias, but it will be on। यहाँ पे देखिए ध्यान से,
T1 रिवर्स बायस्ड है, बट यहाँ पे जो है ये ऑफ नहीं होगा, ये ऑन ही रहेगा। T1 इज रिवर्स बायस बट इट विल बी ऑन, इट विल बी इन कंडक्शन मोड। क्यों रहेगा कंडक्शन मोड में? क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो नहीं है। आपको मैंने दो कंडीशन बताई थी। नेचुरली कम्यूटेशन यहाँ पे जो होगा, इट मीन्स उसके अक्रॉस वोल्टेज रिवर्स होना चाहिए और करंट की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए बिलो द होल्डिंग करंट। इन्हीं दो कंडीशन में थायस्टर आपका टर्न ऑफ हो सकता है। बट यहाँ पे T1 देखिए एक कंडीशन फुलफिल है, टाई T1 आपका रिवर्स बायस जरूर है, बट यहाँ पे आपका करंट जो है वो जीरो नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपका लोड करंट है इट विल डिक्रीज ग्रेजुअली, इट विल डिक्रीज ग्रेजुअली। ये धीरे धीरे क्या होगा, आपका करंट जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। वापस बता दो। बता रहा हूं मैं, करंट आपका यहाँ पे डिक्रीज होगा और जो VT1 है ये अभी भी ऑन है, दैट्स वाई इसके अक्रॉस वोल्टेज अभी भी कितना रहेगा, जीरो रहेगा। कितना रहेगा, जीरो रहेगा। ओके, और जो आपका VT2 है, अब ये VT2 जो है ना वो माइनस ऑफ 2Vm नहीं है, ये प्लस ऑफ 2Vm में आएगा, प्लस ऑफ 2Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब आई नोट जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और जैसे ही आई नोट जो है वो होल्डिंग करंट के बिलो होगा, आपका नेक्स्ट थायस्टर जो है आप वहां पे फायर कर सकते हो। T2 आपका ऑन हो जाएगा और T1 आपका टर्न ऑफ हो जाएगा। ये आपने यहाँ पे कंडीशन में देखा है पाई प्लस अल्फा पे। ठीक है, वेव फॉर्म में देखिए आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए आप, देखिए पाई टू पाई प्लस अल्फा, पाई टू पाई प्लस अल्फा। यहाँ पे देखिए T1 ऑन है, आपको V नोट जीरो है, करंट जीरो नहीं है। दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो तभी थायस्टर ऑफ होगा। दोनों कंडीशन कौन सी, वोल्टेज भी रिवर्स होना चाहिए और करंट भी क्या होनी चाहिए, बिलो द होल्डिंग करंट। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज तो आपका जीरो है बट करंट जीरो नहीं है, तो यहाँ पे T1 जो है वो कंटिन्यूस कंडक्ट करेगा। कंटिन्यूस क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। सो V नॉट जो है वो किसके इक्वल है, VAN के इक्वल है। किसके इक्वल है यहाँ पे, सॉरी VAN आपका चेंज हो गया, VBN के इक्वल है। तो यहाँ पे आपका जो वोल्टेज है वो क्या आएगा, देखिए ये रिवर्स में चला जाएगा वोल्टेज, क्योंकि T1 के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज है। ठीक है, तो V नोट आपका क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइकिल आ जाएगी इनपुट की। आई नोट जो है वो यहाँ से ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट एक तरह से आप ले सकते हो बिलो द होल्डिंग पॉइंट है। यहाँ पे आपका करंट जो है बिलो होल्डिंग पॉइंट है, वोल्टेज यहाँ पे अगेन देख लीजिए जीरो हो गया, वोल्टेज जीरो हो गया, करंट बिलो होल्डिंग करंट है। तो यहाँ पे जैसे आप T2 को फायर करोगे, T1 जो है वो नेचुरली ऑफ हो जाएगा। T1 क्या हो जाएगा, नेचुरली ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सो अब VT1 देखिए यहाँ पे अभी भी ऑन है VT1 आपका, तो यहाँ पे VT1 के अक्रॉस वोल्टेज रहेगा जीरो, और VT2 के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा आपका, 2Vm, 2Vm। ठीक है, अब T2 पे आप फायर कर रहे हो, सॉरी पाई प्लस अल्फा पे आप T2 को फायर कर रहे हो, तो यहां से T2 जो है वो कंडक्शन मोड में आएगा और आउटपुट वोल्टेज जो है वो आपका क्या रहेगा, वही सप्लाई वोल्टेज के इक्वल। करंट यहां से ग्रेजुअल इंक्रीज होगी। VT1 जो है यहाँ पे VT1 के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज है, तो कितना रिवर्स वोल्टेज है, माइनस ऑफ 2Vm, और VT2 यहाँ पे ऑन है आपका, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना रहेगा, जीरो। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखिए 2 पाई प्लस अल्फा। देखिए यहां तक आपने किसी को भी फायर नहीं किया, आपने T1 को अगेन यहाँ पे इस पॉइंट पे आप T1 को फायर करोगे, यानी T1 को ऑन करोगे, तो यहां से यहां तक देखिए T2 आपका ऑन ही रहेगा, है ना। इनकमिंग थायस्टर यहाँ T1 है, आउटगोइंग थायस्टर T2 है। तो जब तक इनकमिंग थायस्टर T1 को फायर नहीं करोगे, T2 आपका कंडक्शन मोड में ही रहेगा, और इसके अक्रॉस वोल्टेज यहाँ कितना रहेगा, नेगेटिव। करंट यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज। T2 ऑन है तो ये वोल्टेज क्या रहेगा आपका, जीरो। ये VT1 इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, माइनस ऑफ 2Vm।
तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलेगा। ये इंक्रीज, T1 ऑन है तो ये 0, ये ऑफ है तो ये माइनस ऑफ 2Vm। ठीक है, इस तरह से। ये आपका प्रोसेस है। ठीक है, कंडक्शन टाइम में यहाँ बता देता हूँ। T1 का कंडक्शन टाइम देखिए, T1 यहाँ से आपने ट्रिगर किया है अल्फा से, कहाँ तक ऑन है? ये ऑन है आपका पाई प्लस अल्फा तक। पाई प्लस अल्फा पे आपने T2 को ट्रिगर किया है, और ये कहाँ तक ऑन है? 2 पाई प्लस अल्फा तक। फिर अगेन यहाँ पे आप T1 को ट्रिगर कर रहे हो, और ये कहाँ तक ट्रिगर रहेगा, कौन रहेगा? 3 पाई प्लस अल्फा तक। 3 पाई प्लस अल्फा तक। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड कितना है? -2Vm, -2Vm। ठीक है, और ये कितना है आपका वोल्टेज? 2Vm साइन ओमेगा टी, या जो भी यहाँ पे एंगल रहेगा उसकी कुछ ड्यूरेशन के लिए। ओके, तो ये वेवफॉर्म है मिड पॉइंट कन्वर्टर। इट्स ए 2 पल्स कन्वर्टर। 2 पल्स देखिए, इनपुट का 1 पल्स यानी 0 से 2 पाई, इनपुट की 1 पल्स के लिए आउटपुट में नंबर ऑफ पल्स कितने हैं? 2। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज 2 पल्स कन्वर्टर। सर 2 पल्स कन्वर्टर। यहाँ पे आपका आउटपुट वोल्टेज दोनों केस में पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है। दैट्स व्हाई यहाँ पे आप दे सकते हो, अगर आप एवरेज वैल्यू लोगे वी नोट का, तो वो हमेशा कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी। T1 के लिए इट स्टार्टिंग मीन्स आउटपुट कैसा है आपका? हाँ उत्कर्ष बताओ। सर VT1 के लिए स्टार्टिंग में 0 क्यों ले रहे हैं सर? VT1 के लिए स्टार्टिंग में मैंने वेवफॉर्म को अल्फा से स्टार्ट किया है, अल्फा से 2 पाई तक। अब 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा जो भी वेवफॉर्म है, आप यहाँ से इसको शो कर सकते हो। अगर मैं स्टार्टिंग में ही 0 से अल्फा तक वेवफॉर्म आपको दिखाता बना के, तो आपको समझ में नहीं आता वेवफॉर्म बनी कैसे। आप अल्फा से स्टार्ट करके 2 पाई पे एड कर दीजिए, फिर 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा जो भी वेवफॉर्म है, V0, I0, VT1, VT2, उसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो आगे। ओके सर। DC आउटपुट कैसा है आपका? DC वोल्टेज है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। एक बार टाइम बताएंगे कितना हुआ है? ये रिवर्स वोल्टेज है, आप यहाँ देख लीजिए। यहाँ आप देखोगे तो ये पॉइंट आपका है पाई प्लस अल्फा, और ये पॉइंट आपका है 2 पाई। ठीक है, चाहे आप VT1 देख लीजिए, VT1 के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज देख लीजिए, चाहे आप VT2 के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज देख लीजिए, दोनों केस में कितना आएगा? पाई माइनस अल्फा। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फा अपॉन ओमेगा। एक तो ये था हमारे पास, और दूसरा हमारे पास क्या था? डायरेक्टली पाई माइनस अल्फा अपॉन ओमेगा। ठीक है, एज वी सी VT2 वेवफॉर्म, V2 VT2 की वेवफॉर्म आप देखोगे तो आपको दिखेगा पाई माइनस अल्फा अपॉन ओमेगा। और यहाँ पे हम देखेंगे VT1 की वेवफॉर्म को, एज वी सी VT1 वेवफॉर्म। ठीक है, और दोनों की वैल्यू सेम है, यानी VC जो है आपका क्या रहेगा? पाई माइनस अल्फा अपॉन ओमेगा। इट्स ए सर्किट टर्न ऑफ टाइम। इट्स ए सर्किट टर्न ऑफ टाइम। नाउ वी विल कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू। इट्स वेरी इजी। साइकिल रिपीट कहाँ से हो रही है? इस पॉइंट से। तो ये टोटल ड्यूरेशन देखिए कहाँ से कहाँ है? अल्फा से पाई प्लस अल्फा, डिफरेंस कितना हुआ? पाई, यानी पीरियोडिसिटी पाई। एट एवरी पाई साइकिल रिपीट इटसेल्फ। ओके,
एंड कंडक्टिविटी टाइम क्या है यहाँ पे, अल्फा से ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर रहा है और पाई प्लस अल्फा तक कंडक्ट कर रहा है, अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक ये कंडक्ट कर रहा है फ्रॉम waveform. What is the value of periodicity? Pi. And it is starting at the alpha to pi plus alpha for this duration pi. Okay. And what is the V naught? V naught is equal to Vm sine omega t omega t. Okay. So solve this equation. We will get output voltage is equal to 2 Vm upon pi cos alpha. 2 Vm upon pi cos alpha. This is the average voltage. Okay. So यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट है, सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर विद आर लोड। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो बताओ। बताइए। नहीं है, कोई डाउट नहीं है, क्वेरी नहीं है। नो सर। प्रॉब्लम 133।